एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Honorable Lieutenant Governor J&K, Shri Manoj Sinha ji, Chief Coordinator G20, Shri Harshvardhan Shringla ji, Chief Secretary Jammu and Kashmir, Shri Dr. Arun Kumar Mehta ji, senior colleagues, friends of the media, I extend a very warm welcome to you to Raj Bhavan today. We have just concluded the inaugural session of the 3rd Tourism Working Group at SKICC. We are extremely privileged to have Honorable Lieutenant Governor here to give us a sense of the development and transformation that has taken place in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Also joining us on the dais today is Shri Harshvardhan Shringla, Chief Coordinator G20, and Dr. Arun Kumar Mehta, Chief Secretary Jammu and Kashmir. I request Honorable Lieutenant Governor to give us his remarks. Thank you. Thank you, Minga. I am very pleased to be among you. Welcome you all to this press meet. At the outset, I would like to express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for providing this historic opportunity to Union Territory of J&K to host 3rd Tourism Working Group meeting of G20 member nations and observer countries. We had a very exciting and productive inaugural session earlier today. The significant deliberation, exchange of views and perspectives will help in building a framework based on 5 priority areas for sustainable tourism as we advance towards post-COVID pandemic era. Jammu Kashmir is fully committed to the effort to build on shared aspirations for sustainable tourism. And as you are aware, Honorable Prime Minister has accorded highest priority to sustainable social and economic development of Jammu and Kashmir. In the last 4 years, policies and programs have been reshaped so that the benefits of growth percolate to the masses and nurture the nature. In tourism sector, there has been unprecedented increase in the tourist footfall after the second wave of COVID pandemic, and we were happy to host over 18 million tourists last year, which I would say was unparalleled since independence. I have also been informed that the ongoing 3rd Tourism Working Group meeting in Srinagar is the biggest gathering of foreign delegates so far. I think it is bigger than previous Tourism Working Group meetings in Darjeeling, Gujarat, and Gujarat. Almost all G20 nations delegates, representatives, and other stakeholders of tourism industry of the respective countries are participating in the event. I have been informed that 59 delegates from 27 countries are participating in the G20 meeting at Srinagar, and it is a reflection of India's strength and our ancient values of Vasudhaiva Kutumbakam. Mitro, green tourism, offbeat destination, लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट तथा टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देकर जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करने की हम सबने कोशिश की है। 3 दशक बाद नई फिल्म नीति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित निरंतर सुधारों ने जम्मू कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन में बदल दिया है, जो अर्थव्यवस्था को भी हमारी मजबूत कर रहा है और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। कुल मिलाकर पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस सेक्टर ने सकल घरेलू उत्पाद में
जीडीपी में लगभग 7% का योगदान दिया है। इस अचीवमेंट को अगर मैं शायरी के लफ्जों में कहूं तो 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं आज कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर तेजी से अमन और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ पड़ोसी मुल्क द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के इकोसिस्टम को लगभग सफाया करने में हमने काफी हद तक सफलता पाई है। आज का जम्मू कश्मीर हड़ताल, अलगाववादी या पत्थरबाजों की भूमि नहीं है। यह शांति और समृद्धि की जमीन बन गई है। अब पूरे वर्ष स्कूल और कॉलेज खुले रहते हैं। हमारे नौजवान कैरियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की हर कोशिश कर रहे हैं। आज का जम्मू कश्मीर भारत के संविधान द्वारा शासित है, जिसने कानून का शासन और आम नागरिकों की सर्वोच्चता स्थापित की है। यहाँ जमीनी लोकतंत्र काफी ताकतवर हुआ है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली ने नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी, विकास में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित की है। और इस जन भागीदारी के महाअभियान में हर नागरिक यहाँ का कह रहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। साथियों, जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और जीवंत मीडिया काम कर रहा है और प्रतिदिन यहाँ 400 से अधिक न्यूज़पेपर प्रकाशित हो रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक नई शुरुआत की है, जिसने समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवा पीढ़ी को सशक्त बनाया है। 35 वर्ष से कम आयु की 65% से अधिक आबादी के साथ हम जम्मू कश्मीर में युवाओं की एक शक्तिशाली शक्ति का उदय देख रहे हैं, जो इन्वेंशन, इनोवेशन और रिसर्च में योगदान दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में विभिन्न खेल आयोजनों में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में 60 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया था। मोर देन 60 लाख यूथ पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, बढ़िया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें कामयाबी मिली है। गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको जमीनी स्तर के एम्पावरमेंट के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी 4292 पंचायतों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रशासन ने यूथ क्लब स्थापित किए हैं। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के सपनों तथा भय, भेदभाव और शोषण से मुक्त एक जीवंत समाज में उनकी मदद करने के लिए मिशन यूथ के नाम से एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही हमने बनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में काफी तेजी लाई है, चाहे वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर, शहरी या ग्रामीण अवसंरचना के मॉडर्नाइजेशन के व्यापक निर्णय लिए गए और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाकर जम्मू कश्मीर में तरक्की की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है और जम्मू कश्मीर महत्वाकांक्षी भी है। हमारी बहुक्षेत्रीय उपलब्धियां इस नई आकांक्षा को दर्शाती हैं। हम हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में हमने 7.7 लाख नए इंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर किए हैं। अगर मोटे तौर पर इसको मैं इस तरह देखता हूं कि प्रतिदिन 527 युवाओं ने, 527 यूथ्स ने अपने व्यक्तिगत सपने पूरा करने और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देने के लिए अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की है। यही नहीं, हम तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी सुनिश्चित कर रहे हैं। देश और विदेश के अलग अलग औद्योगिक घरानों से हमें प्रतिदिन औसतन 7 से 8 एप्लीकेशंस मिल रही हैं, जो यहां अपनी इंडस्ट्री स्थापित करने के इच्छुक हैं। अगर पिछले वर्ष 2022 की मैं बात करूं तो एवरेज
प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री यहां ऑपरेशनल हुई है। बहुत कम समय में हम जम्मू कश्मीर में डिजिटल सोसाइटी निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन मोड में 450 से अधिक पब्लिक सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रदान कर रहा है। प्रशासन की पूरी वर्किंग डिजिटल टूल्स पर आधारित हो गई है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 2022 में 2022 में जम्मू कश्मीर ने प्रतिदिन 1.2 मिलियन ई ट्रांजैक्शन दर्ज किया था और इस साल 2023 के पहले 4 महीने में हमने 2.3 मिलियन ई ट्रांजैक्शन दर्ज किए हैं, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। 150 से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 2 एम्स, IIT, IIM, 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज और अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर न सिर्फ राष्ट्र की नॉलेज इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, बल्कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए ह्यूमन कैपिटल तैयार करने में भी समर्थ हो गया। 2019 के बाद प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की हमारी गति लगभग 10 गुना बढ़ गई। 2018-19 में जहां 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 92,560 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। हम एक प्रभावी और कुशल ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराता है। हम अपनी ताकत का पूरी तरह दोहन करने और अपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए तरीकों के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के समर्पित प्रयासों का नतीजा है कि मंथली इनकम के मामले में जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। हम अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए 5,013 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं। हम भारत में सैफरन, एप्पल, वॉलनट और भी अनेक नीश क्रॉप्स और आलमंड के उत्पादन में तो नंबर 1 है ही। आने वाले दिनों में हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पर विशेष जोर देकर के जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के स्तर पर समानांतर रूप से हो रहे परिवर्तन के बारे में आपको बताने के लिए मैं इन प्रभावशाली आंकड़ों से परे जाना चाहता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख से अधिक विमेन एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के मामले में आज ग्लोबल स्केल पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आज का जम्मू कश्मीर कृषि उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, बागवानी उत्पादों तक यानी विविध वस्तुओं के निर्यात का बड़ा केंद्र बने इस दिशा में अग्रसर हुआ है। इन सभी ताकतों के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, जिससे हमें आगे भी बेहतर संभावनाओं की नींव रखने में मदद मिल रही है। और एक खुशी की बात है कि यहाँ का एक्सपोर्ट, खासतौर से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था पिछले साल से, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें चाहे वो कारपेट और पश्मीना की GI टैगिंग हो, QR कोडिंग हो, अनेक हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की GI टैगिंग हो, इसका बड़ा लाभ हमें मिला है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेरी ख्वाहिश कहें या हमारे प्रशासन का लक्ष्य कहें, वह पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीपुल फर्स्ट है। और अगर मैं कविता की जुबान में कहूं तो मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो और उसे सारा जमाना चाहिए था। फ्रेंड्स, I have outlined socio-economic achievements of Jammu Kashmir in some detail with a wish that it captures news, mind and space tomorrow. These achievements also show that we are firmly resolved to continue with the reform process and accelerated development in every sector. Friends, this is just the beginning of the turnaround of Jammu Kashmir, the crown of incredible India. I remember Sri Aurobindo had once said, and I quote, "The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the world."
Thank you, sir. Before we open the interaction to the media, I would request kindly introduce yourself and your organization before asking your question, and also avoid questions of a similar nature. So Snehi Shah from the Print from Delhi, sir. Congratulations on this splendid G20 meeting. सर एक चीज जानना था, जैसे मैंने G20 अब कश्मीर को दोबारा से हम फिल्म डेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो जब मैंने डेलीगेशन से बात की, कुछ फॉरेन डेलीगेशन से बात की, उनका एक वो कहना था कि यहाँ पे जो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो होटल अच्छे होटल, वर्ल्ड क्लास होटल यहाँ बन सके। जहां तक आपने ट्रांसपोर्ट की बात कही, तो मेट्रो श्रीनगर और जम्मू में स्वीकृत हो, इसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। ई बसेस हमारी हमने ऑर्डर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त महीने से ई बसेस भी श्रीनगर और आसपास के शहरों में चलने लगेंगी, जम्मू और उसके आसपास के शहरों में भी चलने लगेंगी। तो ये जो आपने विषय उठाया है, ये पूरी तरह से हम लोग इस मामले से हम लोग मुतमईन हैं और हमारे सभी प्रशासन के साथ ही इस पर काम कर रहे हैं। आगे जब आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छे होटल में देश के हम टिकाएंगे, वो 2 साल बाद। मिलन शेट्टी फ्रॉम DSTV। एक्चुअली सर मेरा कहना यह है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एविएशन मिनिस्ट्री जो एयर फेयर में जो डिस्काउंट चालू किया, एक विशेष सुविधाएं उपलब्ध किया, तो वो सुविधा आपका इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आपका यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आने जाता है? जैसे आपने उम्मीद करते हैं जो 18 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे अराइव कर चुका लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे एक सर्वे में देखा जा रहा है हर महीना में 3 मिलियन टूरिस्ट आने चाहते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन मतलब रोड रास्ता ट्रांसपोर्ट की वजह से आ नहीं जाता है। एयरपोर्ट से वो लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये इतना मतलब एवल फेयर रहते हैं जो दिल्ली टू श्रीनगर कभी 25,000 32,000 ये चीज उन लोगों को पे करना पड़ रहा है। वो टूरिस्ट जहां पे बजट लेके आएंगे, लेकिन वो बजट 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ आपका जन्नत में घूमने चाहते हैं 8-10 दिन। हो गया, समझ गए। देखिए, मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के माध्यम से भी आने वाले जनवरी में 2023 जनवरी में कनेक्ट हो जाएगा। ये सच है कि तात्कालिक रूप से एयर फेयर यहां ज्यादा हो गया है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2 साल में एयर कनेक्टिविटी जम्मू और श्रीनगर की बहुत बेहतर हुई है। पहले 18 फ्लाइट आती थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर और जाती थी 2020 तक। अभी जो लास्ट आंकड़ा था गो फर्स्ट के बंद होने तक, वो 63 फ्लाइट यहां आती थी और 126 फ्लाइट्स का ऑपरेशन हो रहा था। एक अभी आप सबके ध्यान में है कि गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है, और इस सेक्टर में खासतौर से लेह, श्रीनगर और जम्मू में काफी फ्लाइट उनकी थी, वो बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं इस विषय को, क्योंकि हज की यात्रा आगे शुरू होने वाली है, तो मैंने जो मंत्री जी हैं वहां सिविल एविएशन, उनके ध्यान में लाया है। ये सच है कि आज का जो व्यापार जगत है उसमें सरकार की दखलंदाजी सीमित हो गई है, बट हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि एयर फेयर भी नियंत्रित रहे। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।